Mukta Charitable Foundation has been working since 2005, and we successfully run a Samvad helpline from Bihar, which has given over uh, scientific information to over 5 lakhs of people about uh, HIV, AIDS, HBV, C, tuberculosis, and sexually transmitted diseases. Since 2023, we have been running a Mukta mental health helpline, which is based in Pune, but we get calls all over India. Basically, we provide telephonic counseling, which is done by a trained psychologist. And the sessions are done weekly, and we run from Monday to Saturday, 12 to 8 p.m. Um, uh, yeah, so I'll just show if I hope the PPT is still visible to everybody. So this is the helpline's number, and that's and today we have joined for a session which is being hosted by Ketki Survase. When we had reached out to her, she very gracefully agreed to doing this session, as everyone must be aware that we do this session free of cost for our participants, and even the facilitator donate their time with us to conduct such sessions. So again, we are very grateful to have Ketki join us today. I'll introduce Ketki a bit. She's a counseling psychologist who has done her master's and bachelor's in psychology from Ferguson College, Pune. She practices client-centered approach, which is also backed by evidence, and she also primarily uses cognitive behavioral therapy, which is also called CBT. And Ketki works from a lens of queer affirmative, anti-oppressive, and intersectional lens, which helps her create safe and non-judgmental space for her clients. Her work focuses on self-awareness, resilience, and personal growth for her clients. Thank you, Keitki, for joining us today. Just before we go into the session, I would like to सबको बताना चाहूँगा that जैसे कि ये स्पेस सभी के लिए एक सेफ स्पेस हम मेंटेन करना चाहते हैं। तो कोई भी किसी का भी ओपिनियन अगर शेयर कर रहा है तो लेट्स ट्राई टू बी माइंडफुल ऑफ ईच अदर एंड नॉट टॉक ओवर ईच अदर, और एक जजमेंट किसी के तरफ हमारा ना जाए। और हम सभी को स्पेस देना चाहते हैं बात करने के लिए और उनका पॉइंट रखने के लिए, बट जैसे फैसिलिटेटर उनका सेशन डिलीवर करने वाले हैं तो हम मेंटेन करेंगे कि क्वेश्चंस अगर चैट बॉक्स में आए और मैं या केत की कोई भी ये क्वेश्चंस पढ़ के आंसर कर देंगे। जस्ट अगर किसी को बात करनी हो तो वो हैंड रेज कर सकते हैं, अनम्यूट कर सकते हैं और बोल सकते हैं, ठीक है। बट हम ट्राई करेंगे कि इंटरप्ट ना हो सेशन का फ्लो, ठीक है। दैट्स अबाउट इट फ्रॉम माय एंड। एंड सभी को जैसे एक नोटिफिकेशन आया होगा कि ये सेशन रिकॉर्ड हो रहा है, तो अगर किसी को कोई इशू है उसके साथ, बिकॉज वी वुड बी अपलोडिंग द रिकॉर्डिंग ऑन यूट्यूब, तो अगर कोई बीच में कोई बात करता है उनकी तरफ से और अगर आप चाहते कि ये रिकॉर्डिंग में ना आए तो आप पर्सनली रीच आउट कर सकते हैं एंड लेट मी नो, हम वो पार्ट रिकॉर्डिंग से हटा देंगे। Thank you for everyone for being patient with the information that I shared. I would like to transfer now the session to Keitki. Thank you so much, Shubham. Thank you so much for that warm welcome and the opportunity to conduct this webinar. And I'm so happy to see so many people join. So thank you to all of y'all who have joined here today. And, we talk about queer affirmative or queer rights हमेशा जब भी जून का मंथ आता है, प्राइड मंथ आता है। अभी प्राइड मंथ खत्म होने वाला है, but that doesn't mean that we should stop caring about it. ये एक ऐसी चीज है कि जिसको हमें साल भर फॉलो करना होता है, फॉर it has to show through our actions and our words. So I'll like to start our can I start my Yes, I'll stop is it sharing from my okay? end. Yeah. I'll start sharing my screen and we can go ahead with the webinar. Please let me know if it's visible. Yes, it is. So today's topic is, like we said, Pride Beyond the Month, being queer affirmative. We'll start with
why should we even care about this? Why is this important? So सबसे पहले तो it is about humanity, human rights. हर आदमी equal होता है, हर इंसान को equal rights होने चाहिए. इस एंगल से हम जब देखेंगे तब इस सब्जेक्ट का इम्पोर्टेंस हमें नोटिस होता है. So everyone, like, if I've heard that a lot of y'all come from psychology background, so you must know the importance of living as our authentic self, as our true self. Queer people, they have to hide their identity. They have to hide who they are, who they're with, their interests, the way of behaving. All of these things alter their real personality and their real self, which really hinders their their mental health, That's why it's important for everyone to live as they are, as their true self, because everyone deserves that. If you're not a part of LGBT plus community, if you're an ally who supports queer rights, if when you show your support to queer people, trans people, you become the catalyst for someone to feel safe around you, to be able to open up about all of this, and to become, so that's how you become the safe space for queer people. And it is also an ethical and our clinical responsibility as professionals to provide inclusive healthcare. Queer affirmative care, it's not just limited to therapy room, it also moves beyond that. It is included in how you treat your people around you or people at school, workplaces, everything. It's a global issue. That's why it is important coming from an ethical point of view. And from responsibility, like ethical responsibility as a therapist, we have to provide equal care, we have to provide inclusive care. And as you must know that unconditional positive regard and respect is something that is very crucial when it comes to therapy. A lot of times, what technique you use or what tools you use for therapy is not as important as the connection that you have with your client or the kind of relationship you have with your client. So, to build that connection, to build that relationship, being queer affirmative and being supportive, being well informed is very important. Now, going beyond June, like we said, it is important that we show our support to queer people and be inclusive throughout the year because queer people exist everywhere throughout all 12 months and they deserve an advocacy all year long. Now, it is also important to question the patriarchal norms that affect everyone because that's from where the homophobic comments or stereotypes arise, like मर्द ने तो ऐसा रहना चाहिए, लड़कियों ने ये पहनना चाहिए, लड़कियों ने ये करना चाहिए, whatever gender rules और ऐसे कपड़े नहीं पहनना और इसको नहीं डेट करना, ये सारी बातें come from patriarchal society. So it's important to take a look at it as well. And when you voice yourself, when you speak up about it, it has the possibility of making a positive effect. So please take your voice and your action, uh, like make put it on the foreground so that it can make a positive difference. Now, what are some struggles that are unique to queer people? You know, So some are the daily life stressors that are common to most queer or trans people, such as discrimination, inequality, bullying. So discrimination ranging from negative comments, bullying, till physical abuse, violence, everything in between. There's pressure coming from family to get married or to change yourself. So that's why people, again, a lot of times live double life, life in their private or life that they portray to other people, portray to their family. So that kind of forced invisibility is only due to homophobia or transphobia, which wouldn't have existed if everyone was supportive or accepting and inclusive. Again, if
your parents, like some parents don't support queer children and force them to go into conversion therapy. Now, conversion therapy is a very cruel uh, therapy type of technique where they try to cure homo- homosexuality and transgenderism. These are not some issues to be treated with. Ye queer log or trans people, they are just different from cisgender and straight people. Does not mean कि ये उनसे अच्छे है, बेहतर है, like नीचे है. It does not have any moral connotation to it. There is no hierarchy. It's just different. That doesn't mean that it needs some curing. It's just different. That's all. Now, a lot of times, trans and queer people have difficulty securing jobs or security at job, facing inequality or discrimination at their job place. Unsafe housing, a lot of times there is risk of getting abandoned, getting like parents forcing them out of house, getting homeless. These are some of the reality that are common to queer people. Again, microaggressions are like the little comments, I would have never guessed that you are gay, और मुझे तो पता ही नहीं था ये तो ट्रांस थी. ऐसे कमेंट्स करना जाने अनजाने में भी कर सकते हो लोग और intentionally भी कर सकते हैं. But these are the small things that also have an effect on queer people's mental health and their daily lives. There's a lot of time negative portrayal in the media, which again cures that stereotype. There's pressure to look passing, which is for trans people, a lot of time they have to do a lot of things to look like a cisgender person. For example, if it's a trans woman, she would have to put, like, there's a certain kind of pressure to put on a lot of makeup, to grow their hair, to grow their nails, paint them, wear very, very feminine clothes, just so they could pass as a woman, which is very distressing. Combined with the gender dysphoria, it's a lot of time very distressing, and which is an additional stress because of the society, because of societal oppression. And a lot of times, the queer person is alone while dealing with all of this. A lot of difficult topics were discussed here today, and it is difficult to deal with all of this on your own. When you're younger, a lot of times अगर आपको कोई मुश्किलें हैं, कोई प्रॉब्लम है, मे बी एक एक पॉसिबिलिटी रहती है कि आप आपके पेरेंट्स को बता सकते हैं कि नहीं ऐसा ऐसा हुआ, या फिर करियर के बारे में चिंता है, फाइनेंशियल कुछ हुआ. आप बता सकते हो, कुछ हेल्प ले सकते हो आपके घर वालों से. बट ये एक ऐसा टॉपिक है जहाँ मोस्ट लोगों को दे कांट गो टू देयर पेरेंट्स. उनके पास कोई सेफ स्पेस ही नहीं रहती मदद मांगने के लिए या फिर नॉर्मल फील करने के लिए इसके बारे में. दैट्स व्हाई again वो loneliness or being alone, वो again it factors into their mental health. Now these are some of the common struggles, daily life struggles to most queer and trans people. Moving on to intersectional struggles. So intersectional struggles meaning all of us have layered identities. Your queerness could intersect with your class, caste, religion, location, and multiple things. Now, in Indian society, coming out is not always the answer. हम बहुत बार movies में देखते हैं, Hollywood movies में या फिर something like that, that coming out is the big revelation. पूरा story रहता है और बाद में come out करते हैं तो done, मस्त. But that's not the case. You have to live your life again, and there is another struggle once you start living as an out person. And coming out is not the be and end all. That is also very important. Now, your social status, where you come from, the intersectionality, dictates whether you'll get access to healthcare, whether you'll have social capital, whether you'll be able to get higher education. Because a lot of times, especially with trans kids, they have to drop out because of maybe the parents abandoned them, or there was severe bullying in college or in school. So a lot of them have to drop out after school and don't get higher education, which again leads to
lesser chances of getting a legitimate, like a proper professional job, as people would put it, which again adds to the loop that keeps them marginalized. Now, now we'll talk a bit about caste privilege and gender privilege, meaning sometimes a queer man would have some like gender privilege because of being a man. They have some extra rights compared to women. But if it's a Dalit man, there is such shift. There's a shift because the caste becomes like comes to the forefront. That's why they have the caste privilege. Sorry, they don't have the caste privilege, and that's how the intersectionality works. Minority stress is again something that marginalized community people go through because of having multiple intersections. Here, for example, a Dalit queer student getting bullied at college. Now, there are multiple layers to this, and that's what minority stress refers to. Now, how does all of this impact on their mental health? Like we said, there's a lot of loneliness, shame, guilt, self-hatred. Takes a lot of time to learn and accept that it is okay to be gay, it is okay to be trans, and it is okay to be out as well. It takes a lot of mental effort. And when you're not in that stage, when you're not there yet, the constant mental fatigue to do the calculation कि अरे ये नहीं बोलना, इसके बारे में नहीं बोलना, इसके सामने ये नहीं बोलना, उसके सामने वो नहीं बोलना. You do a lot of mental gymnastics just to censor yourself, especially from your loved ones. Then it feels it feels sad and frustrating to like censor yourself like that, which adds to the mental fatigue, sadness, like we said here, from the forced invisibility, abandonment, like we mentioned earlier. All of this leads to feelings of anxiety, hopelessness, helplessness, isolation, worthlessness, depressed mood, having suicidal tendencies. Substance abuse, also queer people, like people from the LGBT community, are at risk of um, using substance. And then gender and body related dysphoria and issues, which come from like especially concerning trans and gender non-conforming people. Gender dysphoria is a very serious and concerning issue that they have to deal with on a daily basis. That's why it gets very grave, has gets difficult. That's why it's important to understand how all of this impact the mental health. But queer people can't always get the help that they need. There are some barriers that they face while seeking help. Some of them including fear of judgment, fear of pathologizing ki, or isko to, like diagnosis as a trans person, like that, as if that's a bad thing. Getting that diagnosed, having that label, that negative connotation, having negative past experiences, and not knowing whether the professional is supportive or not. You need some kind of clue or some kind of visibility to see that yes, this is a safe space. अगर वो ही नहीं होगा, अगर डॉक्टर उनके वेबसाइट पे नहीं लिख रहे कि ये सपोर्ट करते हैं कि लोगों को, so sometimes you don't know, you can't risk that. That's why lack of visible safety cues. And sometimes queer people don't have access to affirmative resources. Depending on where they come from, their background, they just might not know. That's why there's the barrier there. Now moving from tolerance to affirmation. Ketki, Yeah. could I interrupt in between? हम Sure. थोड़ा समराइज कर सकते हैं क्या अभी तक जो हमने कवर किया है? मैं समझ पा रहा हूँ कि थोड़ा मिक्स ऑडियंस है, जो हिंदी में भी इंग्लिश समझने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है. तो इफ वी कुड रन थ्रू लाइक द पॉइंट्स दैट आर कवर्ड राइट नाउ, उसको थोड़ा अगर हम समराइज कर पाए हिंदी में, या यू वांट मी टू डू इट एनीहाउ? You can go ahead. Yeah. Okay.
तो मैं मतलब आई होप कि ऑडियंस में सबको आज जो सेशन हमारा हो रहा है ये क्वेयर अफर्मेटिव स्टांस पे है, मतलब जो एलजीबीटी क्या कम्युनिटी होता है। आई होप एवरीवन इज अवेयर अबाउट इट। ओके राहुल जी, धन्यवाद। तो जैसे हम इस बारे में बात करें कि ऐसा स्टांस क्यों इम्पोर्टेंट है कि मतलब जो कम्युनिटी होता है दे आर नॉट डिफरेंट पीपल एज सच, मतलब वो अलग लोग नहीं है। सिर्फ एक सेक्सुअल ओरिएंटेशन या आइडेंटिटी अलग होने से इंसान बदल नहीं जाता है। ह्यूमन पर्सपेक्टिव से हम देखें तो हम सारे एक ही कम्युनिटी के हैं। बट यूनिकनेस वहाँ पे आता है जहाँ पर जो कंसर्न्स और स्ट्रगल्स फेस करने पड़ते हैं आइडेंटिटी की वजह से, उसके लिए सपोर्ट यूनिक तरीके का हमें देना पड़ता है। तो उसके बारे में ये सेशन हम ले रहे हैं। तो स्ट्रगल्स में जैसे खुद के आइडेंटिटी को बताने में दिक्कत आना, या सोशल स्टिग्मा जो होता है कि अगर आप किस लड़का होकर अगर लड़के को लाइक करते हैं तो उसके अराउंड काफ़ी सारे चीज़ें हम सोसाइटी में देखते हैं। मतलब आपने आजू बाजू में भी देखा होगा, आजकल मूवीज़ में भी काफ़ी ऐसी चीज़ें आने लगी हैं, इस बारे में बात होने लगी हैं। और सबकी जानकारी के लिए भी एक वापस मैं बताना चाहूँगा कि डीक्रिमिनलाइजेशन हो चुका है। पहले ये एक क्राइम माना जाता था आइडेंटिटी होना, पर अभी 2018 में इसका डिक्रिमिनलाइजेशन हो गया है। पर उसी के साथ साथ फिर मतलब हम जैसे सभी को एक ह्यूमन राइट्स है कि आप जिससे चाहे उससे शादी कर सकते हो, आपका जो भी आइडेंटिटी है वो आप रख सकते हो। मतलब अगर किसी इंसान को अगर वो लड़का पैदा हुआ है और उनको लड़की बनना है, तो ये चीज़ें जो है एक फ्रीडम होना चाहिए हर किसी को अपने आइडेंटिटी को जीने का। तो उसके अराउंड राइट्स अभी भी कम है जो लीगली रिकॉग्नाइज नहीं होते हैं। मतलब शादी करने का एक राइट नहीं है, ट्रांजिशन के भी राइट्स है, पर वो मदद मिल पाना काफी एक बहुत अंतर है जहाँ पर राइट है और लोग जहाँ पर है। तो वो एक ब्रिज बनाने के लिए हमें क्वेयर अफर्मेटिव स्टांस लेना पड़ता है। क्योंकि जो स्ट्रगल्स होते हैं, जैसे खुद को छुपाए रखना, खुद का जीवन लोगों को सामने ना बता पाना, अगर आपका पार्टनर है तो उनको आप घर पे ना बताना पाना, और इसके लाइक मैं इसमें देख पा रहा था कि जॉब अपॉर्चुनिटीज भी नहीं मिलते हैं। अगर आप बताते हो मेरी आइडेंटिटी ये है, तो काफ़ी डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ता है। जैसे मैं ये देख पा रहा हूँ एक लिव्ड एक्सपीरियंस हमें, तन्वी जी धन्यवाद आप ये ओपनली बता रहे। जैसे आपने आपके आइडेंटिटी के बारे में बताया, बट आपको एक सपोर्टिव एनवायरनमेंट नहीं मिल पाया। तो ऐसी जो चीज़ें होती है इसके लिए अफर्मेटिव स्टांस हम देखते हैं। और जैसे केतकी जी बता रहे थे, कास्ट और क्लास का भी एक बैकग्राउंड होता है। अगर आप एक माइनॉरिटी कास्ट से आते हैं, मतलब दलित बैकग्राउंड से आते हैं, तो आइडेंटिटी के साथ और एक माइनॉरिटी बन जाती है कि दो तीन चीजें हैं जो आपको सोसाइटी में जगह लेने में दिक्कत ला रही है। तो अगर ऐसा हो रहा है तो हम क्लाइंट्स को कैसे सपोर्ट कर सकते हैं, और इन जनरल हमारे पर्सनल लाइफ में भी हम किसे कैसे कम्युनिटी से जो लोग होते हैं उनके लिए सपोर्ट प्रोवाइड कर सकते हैं। दैट्स अबाउट इट। आई होप इट कैन कुड कवर मोस्ट ऑफ इट। थैंक यू सो मच शुभम, बहुत थैंक यू। अच्छे से बताया सब। आई थिंक यू कवर्ड एवरीथिंग। तो मूविंग फॉरवर्ड, तो क्वेयर अफर्मेटिव क्यों होना, ये हमने अब तक डिस्कस किया। मगर कैसे करते हैं, क्या एक्शन स्टेप्स लेते हैं, क्या माइंडसेट में चेंज होना चाहिए, ये हम इसके आगे से डिस्कस करेंगे। सो फॉर थेरेपिस्ट, नॉन डिस्क्रिमिनेटरी मतलब यू ट्रीट एवरीवन इक्वली, कि मैं किसी को ज्यादा इसका वेटेज नहीं दूंगा, इसका ज्यादा रिकग्निशन नहीं, मैं आई ट्रीट एवरीवन इक्वली। उसका ऑपोजिट रहता है क्वेयर अफर्मेटिव, मतलब यू आर इन्फॉर्म्ड अबाउट क्वेयर लाइव्स एंड देयर स्ट्रगल्स। आपको पता रहता है कि क्या डिफरेंट आइडेंटिटीज रहते हैं, उनके क्या यूनिक स्ट्रगल्स रहते हैं, उनको कैसे ट्रीटमेंट चाहिए रहती है, उनसे कैसे कन्वर्स करना है, ये सब मालूम होना, एक्टिवली सपोर्ट करना और रिकग्नाइज करना कि अगर ये गे आदमी डिप्रेस्ड है तो उसका क्वियरनेस, उसका गे होना कितना फैक्टर इन करता है उसके डिप्रेशन में। उसका बैकग्राउंड समझने के लिए उसकी आइडेंटिटी भी समझना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इट हेल्प्स टू learn their background and their situation on a deeper, more nuanced level.
So now a lot of times, especially during June month, लोग किसी पे भी रेनबो फ्लैग थोप देते हैं और कहते हैं कि नहीं हम सपोर्ट करते हैं एलजीबीटी प्लस कम्युनिटी को, बट इन प्रैक्टिस कुछ नहीं होता. बहुत बार मार्केटिंग गिमिक या फिर ऐसे फ्रॉड बल्कि यूज किया जाता है ये रेनबो फ्लैग और प्राइड मंथ में, बट दैट इज नॉट समथिंग दैट वी वांट टू डू एज मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स. और इवन इन जनरल ये प्राइड जब शुरू हुआ था, it started as a revolt, as a resistance. It shouldn't be used for marketing or like to grab cheap money. It, you should, जब आप बात करते हो कि आप queer affirmative हो, तो आपके एक्शंस थ्रू दिखना चाहिए, आपके एडवोकेसी थ्रू दिखना चाहिए. अगर अगर आप कुछ मिस्टेक्स भी कर रहे हैं तो उसकी अकाउंटेबिलिटी लेना भी सीखना चाहिए. आगे हम देखेंगे कि हाउ टू प्रैक्टिस एवरीडे एलाइशिप, मतलब आप रोज के दिन में लाइक रोज की लाइफ में क्या कर सकते हो टू शो सपोर्ट टू क्वेयर पीपल. सो देर आर टू काइंड्स हियर. फर्स्ट ऑफ ऑल हम माइंडसेट में शिफ्ट चाहिए. सेकेंड ऑफ ऑल आपके एक्शंस थ्रू दिखना चाहिए. नाउ एक्शंस में इंटरप्ट कैजुअल होमोफोबिया. अगर कोई बोल रहा है अरे वो तो कितना गे दिखता है, या फिर क्या कपड़े पहने उसने, क्या गे जैसा दिख रहा है, समथिंग लाइक दैट. पीपल आर कॉन्स्टेंटली मेकिंग दीज रिमार्क्स. हम जब बड़े हुए थे तब एवरीवेयर वी सॉ negative portrayal of queer people, trans people, whether it's Bollywood or foreign movies as well. एक वो पोर्ट्रेयल ही ऐसा तैयार हो जाता है कि वो स्टेरियोटाइप्स बिकम वेरी कॉमनली रिकग्नाइज बाय एवरीवन, कि सबको लगता है कि हाँ ये तो नॉर्मली है, ये तो ऐसे ही रहते हैं. बट इट इज नॉट ट्रू, इट इज हार्मफुल. सो आप अगर किसी सोशल सिचुएशन में हो जहाँ कोई होमोफोबिक रिमार्क पास कर रहा है, ट्रांसफोबिक रिमार्क पास कर रहा है, तो उनको इंटरप्ट करे और उनको बताए कि ये कैसे गलत है. एटलीस्ट इंटरप्ट करना और उनको स्टॉप करना इज वेरी इंपॉर्टेंट. अवॉइड अजम्पशंस. सो अवॉइड अजम्पशंस माने कि कोई आदमी का जस्ट बाहर से देख के आप उसका सेक्सुअल ओरिएंटेशन या फिर सेक्सुअलिटी जेंडर गेस मत किया करो. just let it be neutral, have it neutral. Like instead of asking, oh, do you have a boyfriend, just ask like, do you have a partner? Or unless the other person shares, keep it to yourself. It's important to avoid assumptions about other people just based on whatever you can see on the outside. Respect noun pronouns. So ट्रांस लोग स्पेशली और जेंडर जो लोग मेल और फीमेल ऐसा कैटेगराइज नहीं होते, ऐसे लोग बहुत बार जो उनको बचपन में नाम दिया होता है उनके पेरेंट्स ने, वो चेंज करते हैं. और जो उनको ज़्यादा सूट होता है, ज़्यादा उनको पसंद है, आपके उनका जो जेंडर है उससे रिलेट होने वाला वो नाम वो चूज करते हैं. और अगेन प्रोनाउंस, अगर प्रोनाउंस भी चेंज करते हैं विद द नेम. So it's important for us to respect their name and pronouns. कि आप उनको डेड नेम ना करें, माने कि उनके बचपन का नाम ना यूज करें. अगर उनका नया नाम है, उन्होंने आपसे कहा है कि अब आगे से मुझे इस नाम से पुकारना, तो यूज दैट. दैट्स अ वे टू रिस्पेक्ट देम. बहुत बार गलतियां हो सकती है, जस्ट आउट ऑफ हैबिट. अगर आपके लिए ये बात नहीं है तो कभी कभी हो सकता है, बट अगर ऑनेस्ट मिस्टेक है तो आप जस्ट अपोलोजाइज करके खुद को करेक्ट करके मूव ऑन कीजिए. उसमें कोई बड़ी बात बनाने वाली भी कोई बात नहीं, बट इट्स इम्पॉर्टेंट टू रिकग्नाइज, अपोलोजाइज एंड देन मूव फॉरवर्ड. नॉर्मलाइज इंक्लूसिव लैंग्वेज, लाइक वी सेड अर्लियर, कि जेंडर न्यूट्रल टर्म्स यूज करना. Like instead of saying he she every time, you can just replace it with they. Or whenever you're addressing people, ladies and gentlemen, that doesn't leave space for people who are not ladies or gentlemen, people who fall outside of that category. तो सबको include करने के लिए ऐसे neutral words use करना भी important है. Now inclusion, अगर हम लोगों को include कर रहे हैं, it doesn't leave you out. It doesn't leave anyone out. It doesn't erase anyone. It just ensures that
सब लोग इंक्लूडेड है. And another thing that's important is to let queer people take the lead. अगर आप स्ट्रेट हैं, अगर आप क्वेयर कम्युनिटी से नहीं हैं, अगर जब भी मौका मिले, अगर आप स्टेज पे हो, किसी बारे में आपको कोई ऐसा चांस मिले जहाँ पे आप एडवोकेसी कर सके और उधर कोई आपके पास क्वेयर पर्सन हो, तो पास द माइक, उन्हें भी चांस देना, उनको भी रिप्रेजेंटेशन देना. And don't center your allyship on your guilt or something like that, you know. A lot of times people post, अगर आप पोस्ट कर रहे हो इंस्टाग्राम पे हैप्पी प्राइड मंथ और समथिंग, तो आप खुद को पूछो कि ये मैं सच में लोगों के लिए पोस्ट कर रही हूँ या फिर जस्ट टू गेट ब्राउनी पॉइंट्स, यू नो, कि ऐसे ही दूसरे लोग पोस्ट कर रहे हैं तो मैं भी करूँगी. That's not valuable. So make sure that everything that you do is rooted in principles, you know. Creating safe spaces. Now, these are some general things that we can do to make safe spaces for queer people. मैंने पहले बोला कि having that pride flag and everything, making that visible is important. It is. But उसके आगे भी जाना चाहिए. उसके आगे गए तो कुछ तो constructive change आता है. So that's why I said कि performative pride gesture से move होके we need to go towards structural change. Now ये आ सकता है training, changing your policies, giving protection to LGBTQI plus people, giving them representation, having sensitivity training programs, discussions around mental health. All of these things can help to create the society at whole as a safe space. Now, we get that a lot of times people talk about queer people struggle or trans people struggle just to be politically correct, or they teach it in school just to be politically correct. They'll add just a paragraph or just a little chapter, but that's not enough. People can do that, but what we as individuals, as citizens can do is to try to inculcate that mindset in yourself and other people, that you have to make change in mindset. ये लोग just नाम के लिए, just syllabus के लिए queer लोगों का ऐड कर सकते हैं कि politically correct दिखने के लिए, बट असली चेंज तो तभी आएगा ना कि जब हम अपनी मेंटालिटी चेंज करें. तो दैट्स व्हाई कल्चरल इंक्लूजन एक इंडिविजुअल लेवल पे, माइंडसेट के लेवल पे इम्पोर्टेंट होता है. नाउ as many of you here are mental health professionals or coming from healthcare background, how to be more queer affirmative. Now just not enough कि हाँ it's okay, I'm fine with gay people, हाँ मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये इनफ नहीं है. इससे आगे जाके कि yes I support gay people, yes I support trans people, this is what something that queer community needs, that LGBTQI plus community needs. Now allyship, अगर आप कम्युनिटी के मेंबर नहीं है बट सपोर्ट करते हैं तो उसको allyship कहते हैं कि जी आप सपोर्ट करते हैं, बट आप खाली थ्योरी में सपोर्ट करें तो उसका कोई फायदा ही नहीं. इट हैज टू शो आपके स्पीच में से, आपके एक्शंस में से, आप किसको एम्पावर करते हो, किसको आप अपलिफ्ट करते हो. ये सारी चीज़ों से आपकी एलाइशिप दिखती है. अगर आप खाली बोले और कुछ करे ही नहीं तो इसका कोई फायदा नहीं. Be informed, especially when queer people go see a therapist. Sometimes there is a difference, like a gap between knowledge, पर queer person उनको खुद से explain करना लगता है कि मेरी gender identity क्या है, या फिर मेरा sexual orientation क्या है, या फिर trans मतलब क्या. अब इतना तो वो खुद को explain करने से उनका भी it gets exhausting for them. सो एज अ थेरेपिस्ट हमें ऑलरेडी ये सब बातें पता होनी चाहिए कि क्या बेसिक टर्म्स होते हैं, क्या बेसिक स्ट्रगल्स होते हैं, हाउ डज इट अफेक्ट मेंटल हेल्थ. सो बी इन्फॉर्म्ड, यूज इंक्लूसिव लैंग्वेज लाइक वी सेड अर्लियर.
अगर जब आप इंटरव्यू लेते हो, जब बात करते हो लोगों को, अगर आपको पता नहीं तो लोगों को पूछो, रिस्पेक्टफुली पूछना कि आप कौन से प्रोनाउंस यूज करते हो। आपका नाम के बाद प्रोनाउंस पूछना, इट्स वेरी नॉर्मल, इट इज ओके। अ लॉट ऑफ टाइम्स यंगर जनरेशन में या बहुत बार देखा जाता है कि लोग प्रोनाउंस का के लिए भी पूछते हैं, जस्ट सो दैट जो लोग दे देम प्रोनाउंस यूज करते हैं, जो लोगों को ही और शी में वो अलाइन नहीं होते, वो उनके लिए, उनको नहीं लगता कि ये मेरे लिए सही है कि शी और ही यूज करना, वो लोग दे यूज करते हैं कभी कभार। तो उन लोगों को अकेलापन महसूस ना करना और मार्जिनलाइज्ड महसूस ना करने के लिए, everyone, if we start using our pronouns, mentioning them और asking for pronouns दूसरे लोगों को, it becomes normal, it becomes normalized. If you're a therapist, having supportive posters, stickers, or like pins which show the pride flag are very important. It can tell the client that yes, this is a safe person to talk about this here. This is a safe space that I won't have to explain myself a lot. I won't have to defend myself, my reality. It makes it easier for them. Another way is आपके वेबसाइट में, आपकी सोशल मीडिया पे हर जगह पोस्ट कर सकते हैं कि yes, you are supportive of queer people. And once you're in the therapy room, it's important to listen to them. आप जितना ज्यादा सुनोगे, उतना ज्यादा आपका अंडरस्टैंडिंग होगा और उतना ज्यादा वो रिलेशनशिप बिल्डिंग के लिए हेल्पफुल होगा। बहुत बार हम खाली सिम्टम्स पे फोकस करते हैं, बट उसका बैकग्राउंड कि क्यों हो रहा है, कब से हो रहा है, वाई इट्स देयर, ये जानना भी इम्पोर्टेंट है। इसलिए उनके लिव्ड एक्सपीरियंस जो बता रहे हैं, उनका क्या एक्सपीरियंस रहा है, उस पर ज़्यादा फोकस करना इम्पोर्टेंट है। बहुत बार वी डोंट गेट इनफ ट्रेनिंग, इंडिया में ज़्यादा ट्रेनिंग भी नहीं मिलता स्पेसिफिक रिगार्डिंग दिस टॉपिक, एंड स्पेशली इफ इट्स ओल्डर जनरेशन को तो उससे भी कम नॉलेज मिलता है। ओल्डर साइकोलॉजिस्ट, ओल्डर साइकाट्रिस्ट, दे कमिंग फ्रॉम 30 साल पहले का नॉलेज, अनलेस दे आर very actively keeping themselves updated. Now, it's important that even if you don't get enough training, once you get queer clients, it's important to validate them. वो बता रहे हैं आपको, तो उसका रिस्पेक्ट करके उनको वैलिडेट फील करना और उनको like make them feel heard and understood and supported, because they're coming there, even थेरेपी में जाने के लिए इतना करेज लगता है, थेरेपी में उससे आके कम आउट करके उनको बताना कि मैं एक LGBT+ कम्युनिटी का मेंबर हूँ, इट टेक्स अ लॉट ऑफ करेज। सो बी रिस्पेक्टफुल ऑफ दैट करेज इज वेल। वो आपके सामने वल्नरेबल हो रहा है, तो उसका रिस्पेक्ट करना भी इम्पोर्टेंट है। सो जस्ट रादर देन फोकसिंग ऑन जस्ट द डायग्नोसिस और सिम्टम्स, उनके लाइफ पे भी उनको एज एन इंडिविजुअल रिस्पेक्ट देना और वैलिडेट करना वेरी इंपॉर्टेंट। देन नो योर रेफरल नेटवर्क। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास कोई ट्रांसजेंडर पर्सन आता है जिनको इंफॉर्मेशन चाहिए, या जिनको कंफ्यूजन है कि सर्जरी करे या नहीं करे, या फिर हॉर्मोन्स ले या नहीं ले, जेंडर अफर्मिंग केयर, तो उसके बारे में आपके पास अगर कॉन्टैक्ट्स हो, डॉक्टर्स, surgeons, then it's important to have that handy so that you can give those resources to them. Again, it's important for like it's not really mandatory that अगर आपके पास queer patient आता है, client आता है और आप straight हो, तो आप किसी और को रेफर कर दो डायरेक्टली, ऐसे नहीं। बट अगर उनको कुछ ज़्यादा हेल्प चाहिए, अगर उनका इशू स्पेसिफिक टू क्वियरनेस है, स्पेसिफिक टू ट्रांसनेस है, और अगर उनको वो जेंडर अफर्मिंग केयर चाहिए, माने कि सर्जरी वगैरह, तब वो वाले कॉन्टैक्ट्स भी आपके पास लिस्ट हुई तो इट्स गुड ओनली। नाउ लुकिंग विद इन, अ लॉट ऑफ टाइम्स वी से कि नहीं नहीं, थेरेपिस्ट उतना जज नहीं करते, कुछ नहीं बोलते, बट is that really possible?
is something that we should really think about. जब हम थेरेपी में जाते हैं, what do you bring? आप आपके खुद के beliefs लाते हो, आप आपके खुद के morals लाते हो, आप आपके खुद के morality लाते हो. Now it depends, whether you can, आप किसको कितना शन करते हो, किसको objectively you try to see the client. But sometimes, what happens is your own beliefs, like our own beliefs, shape the way we see the client. And then we shape the way to not solve, but go about the treatment. So these are some questions that I would implore you to explore on your own. Please take a screenshot of this. I think this is very important. Once you sit with these thoughts and explore these things on a deeper level, वो आपको आपके खुद के बारे में ज़्यादा इन्फो देगा कि अच्छा सच में मैं ये सोचती हूँ, मेरा ये बिलीफ सेट्स है और इसके वजह से मैं ऐसा सोचती हूँ. It really helps to figure that out. So, what are my beliefs about gender, sex, sexuality, relationship, caste, and class? अगर like कौन सा वाला normal है, abnormal है, कौन सा वाला morally sanctioned by me, कि नहीं मेरे को तो लगता है कि ये गलत है, ये सही है, इस एंगल से. Another question that is important is क्या आप queer affirmative therapist बन सकते हो without supporting other marginalized community? So this question again sheds a light on intersectionality जो हम पहले बात कर रहे थे कि आपका caste, class, religion, all of these things intersect. तो आप कौन से टाइप के थेरेपिस्ट बनना चाहते हो? अगर आप किसी सिलेक्टिव लोगों को ही सपोर्ट करोगे while disregarding दूसरे identities को, and is that even possible once we consider about intersectionality? Because अगर आप queer affirmative हो, आपके पास queer client है, but they come from Dalit background, they come from a Muslim family, conservative family, उनका वो साइड का स्ट्रगल भी आपको पता होना चाहिए just to treat the client in a better, more deeper and with deeper understanding. So this is something to explore on your own. Examine how internalized beliefs about gender, sexuality, caste, class affect client engagement. So like I mentioned earlier, all of these beliefs, like whatever you have, you bring it to the therapy session. आप आपके खुद के beliefs लाते हो, खुद के judgment लाते हो, आप वो actively side में कर सकते हो. मगर जब आपके life में like out of the therapy session as well, वो affect करता है. तो take time to understand what are your beliefs, because your beliefs will, like I mentioned, like it will affect how you see the client and what you'll recognize as a problem. Sometimes the client has entirely different issue and the therapist thinks that maybe coming out is their issue or maybe this is their issue. Like आप खुद से मत बनाओ वो जो बोल जाए specific, help them with that, but don't make any assumptions because it may be coming from your own biases. तो पहले ही उसको check करके, having that knowledge helps to be better than that. That's why in therapy room, so how to go about once you get queer clients, this is like a little brief about it. Know the unique life stresses like we mentioned earlier, कि क्या common stresses होते हैं, क्या intersectional struggles होते हैं. And coming out माने you accept that yes I am gay, और इसके दो पार्ट रहते हैं, you come out to yourself खुद को और दूसरे लोगों को भी. और वो कैसा करना, कब करना, बिकॉज हमेशा आप आपके घर वालों को नहीं बता सकते या आपके दोस्तों को नहीं बता सकते. आपकी सिक्योरिटी, आपकी सेफ्टी कॉम्प्रोमाइज हो सकती है, आपके रिलेशनशिप्स कॉम्प्रोमाइज हो सकते हैं. तो उसके लिए भी बहुत थिंकिंग करना पड़ता है कि वो तो अच्छी लड़की है बट आई डोंट नो इफ शी सपोर्ट्स गे पीपल सो आई एम नॉट गना कम आउट. ऐसा भी होता है बहुत बार. सो ये सब करने के लिए उनको to support them through this, that is also very important. A lot of times coming out जब starting में लोगों को लगता है कि
ओके सो आई एम नॉट स्ट्रेट, मेरे शायद मैं गे हूँ, तो स्टार्टिंग में बहुत डिनायल रहता है, बहुत सारा गिल्ट शेम रहता है. टू हेल्प योर क्लाइंट्स navigate that is your responsibility, and that is something that has to be tended with a lot of care. But like we mentioned, there is abandonment, rejection, loss of relationship for people from the community, and it affects their attachment style and it affects their relationships moving forward in life. Now, this is an angle that you can use in your sessions to explore how the relationships are in this person's life. Couples conflict and interpersonal violence. Now, we know that this is common for straight people. Straight people go to couples counseling, मगर gay लोग का couple है, तो उनका कोई conflict हुआ couple में, where do they seek help? उसके लिए भी being queer informed therapist होना is very important. बहुत बार queer लोगों के parents और family might come to you to get that reassurance or some kind of help. वो पूछेंगे कि मे बी ये क्योर कैसे करते हैं, या फिर ये कितना डिफिकल्ट है उनके लिए. So be ready for those kind of conversations as well. And some of you might belong to the queer community. आप खुद भी queer community के member हो सकते हो and आप therapist हो सकते हो, but उसका मतलब ये नहीं कि आप queer affirmative therapist हो. उसके लिए आपके पास ट्रेनिंग भी होना चाहिए, आपके पास नॉलेज भी होना चाहिए, क्योंकि बहुत बार रिस्क ऑफ ट्रांसफरेंस भी रहता है. मतलब आप बहुत रिलेट करते हो आपके क्लाइंट से, लाइक क्वेयर क्लाइंट से, या फिर आप आपके खुद के लाइफ के बारे में ज्यादा जोड़ना शुरू कर देते हो और वो मिक्स हो जाता है. समथिंग दैट इज वी डोंट वांट टू मेक दैट हैपन, यू नो. तो उसके लिए सेल्फ वर्क बहुत इंपॉर्टेंट रहता है कि खुद को चेक में रखे, गेट क्वालिटी सुपरविजन, एक सीनियर सुपरवाइजर, स्पेशली अगर वो भी क्वेयर अफर्मेटिव थेरेपिस्ट हो तो बहुत ही अच्छी बात. बट keep on constantly learning about this, whether it's through courses, diplomas, training, workshops. You have to constantly update your knowledge. Just being a queer therapist is not enough. You have to be informed and take the training and keep on learning. It's about ongoing self-awareness, advocacy, and commitment to change. Like we said, it's important to have that introspection and then to advocate it vocally, visibly, and even if you make mistakes, make a commitment to change, make it better. Now, these are some extra resources if anyone is interested. The first one, Queer Affirmative Counseling Practice. It's a resource book. The PDF is available online. It's written by a bunch of psychologists who are queer themselves, who are gender non-conforming themselves. They are therapists and they are researchers जिन्होंने उनके खुद के एक्सपीरियंसेस से, उनके क्लाइंट्स के एक्सपीरियंस से ये बुक लिखा है, स्पेशली फॉर इंडियन पॉपुलेशन, इंडियन क्वेयर पीपल के लिए. बहुत बार वेस्टर्न वाला इट्स नॉट इनफ. वेस्टर्न मॉडल्स इंडिया में काम नहीं करते, उतना ज़्यादा हेल्प नहीं होता. तो इसी वजह से दिस इज़ अ वेरी गुड एंड इन अ वे रेवोल्यूशनरी textbook for all of us, for all the queer affirmative practitioners. Now, the Muslim Queer Project, Dalit Queer Project, Rainbow Literature Festivals, these are some of the projects or initiatives which offer you that community feeling, which offer you that representation. अगर आप marginalized हो, अगर आपके पास कोई दूसरे queer friends नहीं है, आप नहीं जानते कि दूसरा कोई और है आपके एरिया में या आपके कॉलेज में, कोई और गे है या नहीं है, आपको नहीं पता, आप अलोन फील कर रहे हो, तब आप ऐसे प्रोजेक्ट्स, ऐसे ग्रुप्स में आप इन्वॉल्व हो सकते हैं. आप उनको फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, जस्ट टू फील a bit less alone and also to get more knowledge. These are some of the good projects that I've come across, which I've mentioned here.
and literature, movies, icons. So बहुत बार in the book that I mentioned earlier, वो book में वो बता रहे थे कि a lot of times Indian लोगों का like Indian parents are homophobic because उनको exposure ही नहीं रहता, उनको पता ही नहीं रहता कि ये क्या है, क्यों होता है, ये नॉर्मल है या नहीं है, इसका क्योर होता है नहीं है, बहुत बेसिक लेवल की चीज़ें नहीं मालूम होती है। इसके वजह से वो हेट्रेड या फिर वो अवॉइडेंस, वो रेजिस्टेंस पैदा होता है। जब क्वेयर लोगों के पेरेंट्स को उन्होंने क्वेयर मीडिया से एक्सपोज किया, उनको मूवीज दिखाए, लिटरेचर दिखाया, उनको प्राइड परेड को लेके चले गए, उनको दूसरे गे लोगों से इंट्रोड्यूस किया कि ये मेरा दोस्त है, ये भी गे है, ऐसा कर करके उनका एक्सपोजर जब बढ़ाया, तब वो पेरेंट्स का एक्सेप्टेंस लेवल्स भी बढ़ा। तो खुद को भी एक्सपोज करे ज़्यादा कि वॉट एवर LGBT प्लस मीडिया है, वेदर इट्स बुक्स, मूवीज, सॉन्ग्स, पॉपुलर लाइक पॉप कल्चर आइकॉन्स, वॉट एवर इट इज, पर खुद को उस उस लाइफ से एक्सपोज करे। अगर आपके पेरेंट्स है उनको भी एक्सपोज करना धीरे धीरे से is something that can be useful. Now, I've written some of my favorite books. There are, of course, a lot more really, really good books written by queer authors and intersectional feminists. But these are some of my favorites. Zami is written by Audre Lorde. So she was a Black lesbian author who is a civil rights activist. She was very big feminist icon. So her book is really good. Then On Earth We Are Briefly Gorgeous, he talks about being queer and mental illness and coming from a family, uh, like the background is they were in Vietnam War involved, so displaced from there. So how his grandma, mother has PTSD, and then his own mental illness coming from the plus the queerness, a lot of layers are there. I think that especially people who enjoy psychology would enjoy reading this one. Then Gender Trouble is written by Judith Butler, who is one of the big personalities जिन्होंने बताया कि जेंडर पैदाइशी नहीं होता, जेंडर के क्या बिहेवियर होता है वो आप धीरे धीरे सीखते हो। कि लड़की क्या होना है आपको पैदाइशी थोड़ी पता होता है कि लड़की कैसी रहती है, आपको कोई बताता है कि अरे नहीं लड़की ने ऐसा रहना चाहिए, लड़की ये पहनती है, लड़कियों को ये पसंद है, ये आपको समाज बताता है। तो ये सारा बताने का मेन थियोरी जूडिथ बटलर ने लिखा था, तो वो भी आप पढ़ सकते हैं। some of my favorite poetry coming from queer authors, I've noted them here. Emily Dickinson, Mary Oliver, बहुत बार LGBT लिटरेचर या मीडिया बहुत बार ऐसा सैड रहता है या ट्रेजेडी फिल्ड रहता है that you also get depressed reading that. But I think Mary Oliver's work is something that's hopeful, something that's light and breezy, something romantic that you could enjoy while reading. Walt Whitman again, nice, easy, easy read. Movies, Fire, it's an Indian movie. It showcases a lesbian relationship in India. Like it was released in 1996. Great movie. Paris is Burning. It has queer and trans representation. And Moonlight, as many of you all might know, it was like very popular in 2016. Great movie, great representation for Black queer people. Now, some other activists I've listed down here, activist icons. Grace Manu, she's a trans activist, Dalit trans activist who works for trans reservation. Alok Menon also talks a lot about कि खाली मैन एंड वुमेन उतना ही नहीं रहता, उसके बाहर भी बहुत सारे आइडेंटिटीज रहते हैं, उनके बारे में एडवोकेसी करना, वो एक्सप्लेन करना, वो आलोक जी बहुत अच्छे से करता है। डॉक्टर अक्सा शेख, शी इज अ ट्रांस डॉक्टर। ऐसा रिप्रेजेंटेशन देखना भी बहुत इम्पोर्टेंट है बिकॉज अ लॉट ऑफ टाइम्स ऐसा होता है कि जो बड़े पोस्ट है या फिर कोई लीडरशिप रोल है उधर
क्वेयर लोग नहीं दिखते, ट्रांस लोग नहीं दिखते. सो पीपल लाइक हर जिन्होंने लाइफ में कुछ बड़ा हासिल किया है despite all of these challenges is something to celebrate. And Lakshmi Narayan Tripathi, she was also a trans activist. And so these are just my personal recommendation. Of course, you can go and figure out your own, but yeah, this is like a little Kickstarter for those who are interested. Now, moving towards the key takeaways, queer affirmation in India is about acknowledging caste, capitalism, kinship, community in pursuit of ongoing justice. अगर आप इंडिया में क्वेयर लोगों के बारे में बात कर रहे हो तो आप कास्ट या क्लास को डिसरिगार्ड कर ही नहीं सकते. वो फैक्टर इन होता ही है हमेशा कि डिपेंड्स कि लोगों का वायलेंस, रिस्क ऑफ रिस्क ऑफ फेसिंग वायलेंस और पॉसिबिलिटी कि इनको हेल्थ केयर मिलेगा या नहीं. ये सब चीज़ें ये आपके बैकग्राउंड से रिलेटेड होती है. सो दैट्स व्हाई इट्स इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट एंड टू एक्नॉलेज दैट. You don't have to be perfect, just self-aware and committed to being ethical. Now, बहुत बार गलतियां हो सकती है, जाने अनजाने में अगर आपको नहीं पता हो सकता है. But like we said earlier, अगर किसी ने करेक्ट किया आपको, just apologize करके करेक्ट करके move on. Next time remember that. And अगर आपने आपने पास में भी कोई गलतियां की हो, कुछ होमोफोबिक बोला हो, करा हो, it's important to recognize that and let it be a learning experience. किया होगा आपने, it's fine, it's never too late to learn though. आप unlearn कर सकते हो, all of us, we grew up around a very homophobic सोसाइटी. हमें बचपन से बताया गया है कि ये लोग तो ऐसे होते हैं या इनका मजाक ही उड़ाया जाता है. मूवीज में भी उनका मजाक ही उड़ाया जाता है या फिर या जिस किसी की आइडेंटिटी एक गाली के तरफ से यूज करना, ये बहुत गलत है. बट ये बहुत नॉर्मलाइज्ड है इंडिया में, बहुत कॉमन चीज है. बट यू शुड नॉट कंफर्म टू दैट. आप भी उसी कम्युनिटी के पार्ट ना बने कि जो वही ऑप्रेशन, वही डिस्क्रिमिनेशन स्प्यू कर रहे हैं. अगर कोई की है गलती, फाइन, अनलर्न करे और आगे बढ़े. Let your support be visible through language, silence and action. अब अगर आप कहते हैं कि आप queer लोगों को सपोर्ट करते हैं, वो दिखना भी चाहिए लोगों को. खाली थियोरी में होके कोई फायदा नहीं उसका. सो आप लाइक आई मेंशन्ड अर्लियर कि कोई होमोफोबिक रिमार्क दे रहा है, इंटरप्ट करे, आपकी आवाज यूज करे. अगर आपको हो सकता है तो प्राइड मार्चेस को जाए, क्वेयर लोगों को सपोर्ट करे, क्वेयर मीडिया को सपोर्ट करे. और साइलेंस एंड एक्शन, these two are again very important. Action, like I mentioned, going to pride parade or supporting people, but silence is also very important. आपके पैसे कहाँ लगा रहे हो? आप होमोफोबिक लोगों को पैसे दे रहे हो, उनके आर्ट में या फिर उनके वर्क में इन्वेस्ट कर रहे हो. आप बहुत लाइक होमोफोबिक मूवीज देखना या मिसोजिनिस्टिक मीडिया में ज्यादा इन्वॉल्व होना. I mean, of course, sometimes you don't know, but if it's very popular or अगर that is the main joke of the product, whatever it is, the content, then you should ask yourself कि do I really want to watch this? इसको मेरा टाइम एंड एफर्ट देना है क्या इस आदमी को जिसके प्रिंसिपल मेरे से मैच नहीं होते? ये भी आप कर सकते हैं. And then be a safe space for the betterment of humanity. आप खुद ही जब सपोर्टिव होते हो, आप खुद ही जब एडवोकेसी करते हो विजिबली, तब लोगों को ऑटोमेटिकली पता चल जाता है कि अरे ये तो सेफ आदमी है, ये अच्छा आदमी है, या इसके आजू बाजू आई वुड फील सेफ. अगर कोई आपका नेफ्यू, नीस, कजिन और समवन, एनीवन, योर नेबर, वो गे हो सकते हैं. आपके फैमिली मेंबर्स कोई हो सकता है जो गे है बट किसी को बता नहीं पा रहे. आपके
एडवोकेसी से या आपके विजिबल फ्लू से उनको पता चल जाता है कि आप सपोर्टिव हो, तो उनको एक आशा मिल जाती है कि मे बी इट्स ओके इफ आई कम आउट टू देम, या इनको इसके बारे में मैं बता सकता हूँ, ये it wouldn't be a problem. So you can be the safe space for them. And once you start, like पहले family, friends, and then वो expand होते होते वो community level पे जाता है. But it is an individual responsibility in the beginning. That's why we talked about the mindset, you know. आपका खुद का mindset में inclusivity add करे, humanity को कोई कंडीशन ना लगा कि ओ ये लोगों को एकदम ह्यूमैनिटी दूंगा, एम्पैथी दूंगा, ये लोग को डिजर्व नहीं करते, ये एक्सक्लूडेड. Make your humanity expansive, unconditional, and that's just a more beautiful way to live, more, you know, useful way to live, in my opinion, meaningful. So yeah, these are some of the main takeaways that I hope uh, everyone will remember, and something that resonated with them. Thank you so much for listening to me, and thank you so much for being here. And I really liked talking about this today, and this is something that is very important and very dear to my heart. So thank you so much for the opportunity. If you have any questions, I'll be happy to answer them. Yeah, I'll just take a minute again. Yeah, हिंदी में समराइज करने की कोशिश sure, करना चाहूँगा. sure. तो जैसे पहले फर्स्ट हाफ में हमने जैसे समझा कि लाइक क्वेयर अफर्मेटिव होना क्यों ज़रूरी है और किस तरह के स्ट्रगल होते हैं कम्युनिटी के. और सेकंड हाफ में कितकी जी ने बताया कि अफर्मेटिव कैसे बना जा सकता है. बहुत छोटी छोटी चीज़ें होती है, जैसे कि कौन से शब्द आप यूज़ करते हैं, या अगर वो एक तरह का रिस्पेक्ट चाहते हैं तो क्या हम वो दे पा रहे हैं. खुद को इंट्रोस्पेक्ट करना, मतलब खुद के नज़रिए को बार बार एग्जामिन करते रहना बहुत ज़रूरी है. अदरवाइज हम बोलते हैं कि हम ओपन है नए चीज़ों के लिए, पर वो हमारे एक्शंस में दिख के नहीं आता है. और लास्ट में केतकी जी ने बहुत अच्छी बात कही थी कि जो मैंने समझा कि जैसे जेंडर या सेक्सुअलिटी या एनीथिंग रिलेटेड टू ह्यूमन, ये एक सोशल कॉन्स्ट्रक्ट है. मानी कि हम एक सोसाइटी का भाग हैं और ये सोसाइटी हमसे ही बनी हुई है. तो जैसे पुरातन टाइम से ये चीज़ें बन के आई है, पर गे होना, लेस्बियन होना, ट्रांसजेंडर होना ये कोई नई बात नहीं है, या ये कोई बाहर के देश से आई हुई चीज़ नहीं है. हमेशा ये लोग हमारे साथ रहे हैं आजू बाजू में, और हमेशा एग्जिस्ट करते आए. अगर आप पूरा ये माइथोलॉजी के बारे में भी देखिए, महाभारत या रामायण, हर जगह हर किसी की आइडेंटिटी है. बस हर नजरिया जो बनता गया वो अलग बनता गया. तो आज भी हम एक सोसाइटी का भाग है, तो हमारे से ये शुरू हो सकता है कि हम हमारे नजरिए को कैसे बदल सकते हैं. आई थिंक, आई होप दैट कंक्लूड्स. और बहुत सारे वेज है ये चीज करने के. आई वुड लाइक टू, मतलब किसी को हिंदी लैंग्वेज में समझना हो ये चीज़ें, प्लीज रीच आउट टू अस, एनीवन इन मुक्ता फाउंडेशन. वी विल, हम बिल्कुल हिंदी में कोई भी रिसोर्सेस हो तो वो शेयर करने की कोशिश करेंगे. और ये एक बात इशिता जी ने चैट में भी कही थी कि लैंग्वेज इज नॉट जस्ट इंग्लिश. मतलब क्वेयर लैंग्वेज कुड ऑल्सो बी रीजनल, और वो है, जस्ट वो दिख के नहीं आता है प्लेटफॉर्म्स पे. That's all I had from my side. Thank you, Keep Kitchen. And just from my side, one more thing I would like, before we jump into questions and um yeah. So again, I would like to say that is my PPT visible to everybody? हाँ. सो जैसे मुक्ता मेंटल हेल्थ हेल्पलाइन एक फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विस है, मतलब बिल्कुल पैसे चार्ज नहीं होते हैं. और यहाँ पे जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं बिल्कुल क्वेयर एंड ट्रांस अफर्मेटिव है. हम एवरी 6 मंथ्स 3 मंथ्स चेक इन ट्रेनिंग करते रहते हैं इन चीज़ों के बारे में, जिसके वजह से हम एक अफर्मेटिव केयर दे पाते हैं हमारे क्लाइंट्स को. और वी आर प्राउड टू से दैट हमारे अभी तक 100+ क्लाइंट्स हैं जो कम्युनिटी बैकग्राउंड से हैं. एंड हम उनको बहुत
डिफरेंट कंसर्न्स के ऊपर सपोर्ट कर पाए, जैसे कि ट्रांजिशन करना है किसी को, कोई अंडर एज है पर उनको ट्रांसजेंडर कार्ड बनवाना है, बहुत सारे मल्टीपल कंसर्न्स आते हैं, किसी को फैमिली को कम आउट करना है, किसी के साथ जेंडर बेस्ड वायलेंस हुआ है, उनके मतलब जहाँ पे वो काम करते हैं या जहाँ पे वो पढ़ते हैं वहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन हुआ है, तो किस तरह वो आगे लीगल सपोर्ट ले सकते हैं, हम ऐसे भी रेफरल करते हैं। हम काउंसलिंग के साथ साथ एक रेफरल डेटाबेस लेके भी चलते हैं कि आपको अगर इसके अलावा कोई हेल्प चाहिए तो बिल्कुल हम आपके साथ हैं। दैट्स वन। एंड केतकी रन्स हर ओन इन पर्सन, सॉरी, ऑनलाइन काउंसलिंग करेंटली, तो बिल्कुल यू कैन ऑल्सो रीच आउट टू हर अगर आपको ऑनलाइन काउंसलिंग लेना है। आप, I think her ID was mentioned here, therapy with Keith की, you can always reach out to her for it. And अगर किसी को मतलब पैसे की दिक्कत है तो you can always recommend the helpline. That's about it from my side. And one more thing, that the helpline is completely free of cost. So we run on like donations. So that would be great if it means that you know anyone who are into like social work and they want to donate each month or something, you can always refer them for this. Like if you believe in the cause, you can always reach out to us, visit our office, get to know the work in more detail. And मतलब ऐसा नहीं है कि डोनेशन लेके हम काम का अपडेट नहीं देते, हम मंथली रिपोर्ट्स भी भेजते रहते हैं हमारे क्लाइंट्स को, डोनर्स को। Yes, मैंने लिंक भी डाले हुए हैं हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स के, जो आप ज्वाइन कर सकते हैं। व्हाट्सएप कम्युनिटी है हमारा जहाँ पे हम मेंटल हेल्थ रिलेटेड चीज़ें अपडेट करते रहते हैं। और सेशंस का भी, ये हमारा 19th सेशन था, तो वी हैव कंडक्टेड 18 सेशन सो फार, तो आगे भी ये हर महीने चलता रहेगा। तो इस तरह के अपडेट्स अगर आपको चाहिए होंगे तो आप हमसे जुड़े रह सकते हैं। एंड वन मोर थिंग, फीडबैक का एक लिंक है डाला हुआ, अगर आपका कोई फीडबैक है सेशन के लिए, अगले सेशंस के लिए, वो आप सबमिट कर सकते हैं। Another thing, I'm so sorry, I'm taking a lot of time here. We also run a campus ambassador program for students. Like, we believe that youth is our current future. I mean, if they are talking about mental health, advocating for it, it's going to help our community in near future. तो ये प्रोग्राम में हम स्टूडेंट्स को इक्विप करते हैं मेंटल हेल्थ सेशन लेने के लिए, एडवोकेसी करने के लिए उनके कैंपस पे। तो आप किसी भी स्टूडेंट को जानते हैं या आप खुद एक स्टूडेंट है, आप बिल्कुल रीच आउट कर सकते हैं। लिंक फॉर द प्रोग्राम मैंने चैट में भी डाला हुआ है। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर दिस टाइम। अभी आई थिंक देयर आर फ्यू क्वेश्चंस, विल एक्सटेंड few more minutes. I hope Keith, that's okay. Yes. Yeah. Anyone who has questions, they can like raise hand, unmute, just go for it. Yes, Chetna. From your experiences, and how is it sort of like different from any other kind of queer experience? And like what is something which is uh, maybe say particular to that experience? Keith, you're unmute. I'm sorry, could you repeat yourself? I missed the first line. My question was that how are queer both of them experiences different from other experiences, like other queer experiences? And can you like give an example or give like a case which can elaborate? Shubham, did you get it? I did not. Yeah, Chetna, I would request you to type that question in the chat box because even I was not able to understand. तब तक रविंद्र जी का जो क्वेश्चन है कि हमने मतलब थेरेपी के बारे में, लाइक अफर्मेटिव बीइंग इन थेरेपी ज़्यादा बात की है, तो कॉमन इन द सेंस लाइक पीपल हु आर फ्रॉम नॉट थेरेपी बैकग्राउंड, उनके लिए किस तरह एक स्टांस हो सकता है कि अफर्मेटिव का। आई हैव, यू कैन गो अहेड। Yeah, that's a good question. बहुत अच्छा question है, I really appreciate it. और कुछ बातें हैं जो common है कि
प्रोनाउंस का रिस्पेक्ट करना, उनके नया नाम है तो नया नाम से उनको पुकारना, बिकॉज अगर आप उनका ओल्डर नाम यूज करते हैं तो ऐसा लगता है कि वो आदमी को लगता है कि दे डोंट रिस्पेक्ट मी, इनको तो खुद के कंफर्ट से ज्यादा, लाइक मेरा मेरी रिस्पेक्ट से ज्यादा खुद का कंफर्ट इम्पोर्टेंट है, ऐसा भी ट्रांसलेट हो सकता है। दैट्स वाई कि जो उन लोगों के प्रोनाउंस है, लोगों का नाम है, उसका रिस्पेक्ट करें। और अगर जब भी कोई सोशल सिचुएशन हो तो क्वेयर लोगों का टॉपिक चल रहा होगा, ऐसी न्यूज़ के बारे में, पॉलिटिक्स के बारे में बात करते हैं लोग, तब कोई बोल रहा है तो आप पॉजिटिव एडिशन करें, इंटरप्ट करके कुछ तो पॉजिटिव कहे कि दिस इज अबाउट इक्वालिटी, इज नॉट अबाउट लाइक तुम लोगों को स्पेशल फील कराना और कोई तो विक्टिम ही है, एकदम ज़्यादा ऐसे एक्सट्रीम में ना जाके कि ये टॉपिक कैसा ह्यूमन राइट्स के बारे में है, इसके बारे में आप बोल सकते हैं। अगर ऑनलाइन भी कोई कमेंट दिखा, आपके ग्रुप चैट में, व्हाट्सएप के चैट में कोई ऐसा मजाक दिखा कि विच इज़ एट द एक्सपेंस ऑफ ट्रांस एंड क्वेयर पीपल, तब आप इंटरसेप्ट करके वहाँ पे भी मेंशन कर सकते हैं। और अगेन अगर कोई इवन आपके पेरेंट्स हो, कोई बड़ा हो फैमिली में, रिगार्डलेस ऑफ द एज, अगर आप उनको ज़्यादा बताए तो वो बहुत अच्छा होता है कि वो उनका वो कम होने के लिए वो किक स्टार्टर बन जाता है। इवन इफ दे आर वेरी स्टबन, एक्सपोजर ही नहीं है तो उनको वो नेगेटिव ही लगेगा, अपने जैसे नहीं है तो उनको वो नेगेटिव ही लगेगा। सो जस्ट बताना कि नहीं ऐसा भी रहता है, बहुत लोग रहते हैं, मेजॉरिटी होती है, उनको भी डिजर्व करता है, वो भी डिजर्व करते हैं सारे राइट। तो ये सब एक्सप्लेन करना, लाइक आपके कम्युनिटी में ना, घर पे, फ्रेंड्स के साथ ऐसे करना भी समथिंग दैट कैन बी यूजफुल। यस। और मुझे ये भी लगता है कि मतलब हम प्रोजेक्ट करते रहना हमारे मतलब कोई आप बहुत बेसिक चीज़ें होती है मतलब कि आप एक बैच लेके चल रहे हो कि आई एम एन एलाय, मतलब मैं सपोर्ट करता हूँ एलजीबीटी का कम्युनिटी को। लोगों को बहुत सेफ महसूस होता है ऐसे स्पेसेस में जहाँ पर मतलब ऑल द पीपल आर फ्रॉम हेट्रोसेक्सुअल बैकग्राउंड, पर एक अगर होमोसेक्सुअल बैकग्राउंड से आ रहा है या क्वेयर बैकग्राउंड से आ रहा है, तो उनको अगर लगता है कि कोई तो है इनमें से जो एक सेफ स्पेस प्रोवाइड कर सकता है। और बेसिक चीजें जैसे एक इंडिफरेंट फीलिंग ना करवा के देना, मतलब वो जिस तरह दिख रहे हैं शायद वो हमारे एक सेट जेंडर स्टेरियोटिप टिपिकल नहीं होंगे, शायद वो एक नॉन बाइनरी बैकग्राउंड से होंगे, मतलब वो एक औरत की तरह भी नहीं दिख रहे हमें और मर्द की तरह भी नहीं दिख रहे, तो बहुत लोगों को एक जजमेंट क्रिएट हो जाता है कि अरे आप ऐसे हो वैसे हो। पर उसी समय में अगर हम उनको कंफर्टेबल महसूस करवाते हैं, आई थिंक that's the gist of it. Yeah, I agree. Thank you, It's a Kirti and Shubham. I have been part of the Pride walk for the last Amazing. few years. Thank you. Amazing. That's amazing. Thank you for being here today. चेतना का क्वेश्चन ये था कि मुस्लिम क्वेयर एक्सपीरियंस कैसा अलग होता है एंड उनके बारे में कैसे सेंसिटिव रह सकते हैं। That's a great question. मुस्लिम क्वेयर एक्सपीरियंस भी बहुत यूनिक रहता है, उसके अलग लेयर्स रहते हैं। अगर वो वुमेन है, अगेन वुमेन रिलेटेड इश्यूज प्लस रिलीजन रिलेटेड इश्यूज प्लस घर का उनका एनवायरनमेंट कैसा है, कंजर्वेटिव है ज़्यादा, कंट्रोलिंग है ज़्यादा, या कैसे है, ये सारी बातें वो इंक्लूड होती है। प्लस क्वेयर एक्सपीरियंस में बहुत बार लाइक दिस इज कॉमन टू इंडियन पीपल, बट स्टिल मैरिज का प्रेशर बहुत रहता है कि शादी कर दो, शादी कर दो। अगर आप बताते हो तो कि नहीं आई एम गे, फिर भी लोग वो फिर तो ज्यादा प्रेशर करते हैं, शादी कर लो करके ना। ऑल ऑफ दिस इट्स लेयर्ड एंड लाइक ऑल्सो बिकॉज क्वेयर लोग मतलब मुस्लिम लोगों को प्लस दलित लोगों को बाहर से इतने नेगेटिव कमेंट्स आते हैं कि वेदर इट्स बेस्ड ऑन आइडेंटिटी, कि अरे ये कास्ट का है, ये रिलीजन का है, पीपल आर इस्लामोफोबिक, पीपल विल मेक नेगेटिव कमेंट्स और यूज इट एज अ जोक, बहुत इजीली कैजुअली लोग करते हैं।
ये सारे के साथ डील करके प्लस आपका क्वेयरनेस डील करना, it gets difficult at times. So this is why I think it's important to acknowledge कि अलग अलग आइडेंटिटीज कैसे इंटरैक्ट होके अफेक्ट करते हैं. I hope that answered your question, and how we can be more sensitive to their different experiences. I think that just comes from extending our basic empathy, I would say. You know, everyone, all of us, सारे लोगों का डिफरेंट आइडेंटिटी रहता है. अब हम 33 लोग हैं यहाँ पे, बहुत सारे अलग रिलीजन के, अलग कास्ट के, अलग एज के, अलग जेंडर के लोग यहाँ हैं. बट हम अगर सबके साथ तमीज से, लाइक रिस्पेक्ट से, एम्पैथी से बात करें, और कुछ ऐसा ना करें कि जो एक्टिवली हार्म करता है, कि जो एक्टिवली उनके आइडेंटिटी का मजाक उड़ा रहा है या एक्टिवली कोई हार्मफुल चीज कर रहे हैं, तो वो ना करे. और फिर बाकी आपकी जो एम्पैथी है वो उनको एक्सटेंड करे, और वो अंडरस्टैंड करे कि ये लेयर्स है, इसलिए ये डिफिकल्टीज हो रही है. उनको अक्नॉलेज करके एम्पैथी देना भी इम्पोर्टेंट होता है. Yes. Thank you so much, Keerti, for that. One last question we can take, and by like 5:20 we will wrap this up. If anyone has anything to share. Yes, Rahul ji. हेलो. Yes. मेरी आवाज़ जा रही है ना? जी जी. यस. हाँ. मेरा सवाल ये था कि अगर मैं किन्हीं ऐसे पर्सन को जो कि बिलोंग करते हैं कोर कम्युनिटी से, पब्लिकली अगर उनको हरास कर रहा हूँ बाई सेइंग रॉन्ग वर्ड और अब्यूजिव वर्ड, तो मेरे खिलाफ कौन से चार्जेस या किस धारा के मुताबिक कोई ऐसा केस बन सकता है जहाँ पे कि पुलिस मुझे पिक कर सकती है उस प्लेस से? ये फर्स्ट क्वेश्चन था. सेकंड, अगर मैं किसी को देख रहा हूँ ये करते हुए, और अगर मैं उनके खिलाफ जाऊँ पुलिस में, तो वहाँ पे क्या अभी हमारे समाज में ये चीज़ बनी हुई है कि हमारे उस एक्शन को पुलिस मानेगी और जाके उस पर्सन को उठाएगी कि हाँ आपने ऐसा हम्म. किसी खत्म किया है? और ये कहाँ तक करना जेन्युइनली सही है? क्योंकि मैं उस समाज में रहता हूँ जहाँ पे कि अभी भी कोर कम्युनिटी को उतनी पहचान नहीं मिल पाई है, और शायद से ये मेरे ऊपर आ जाएगा कि हम्म. मेरे ही लोग बोलेंगे तुमने ऐसा क्यों किया. तो प्लीज इसका आंसर मुझे बताइए. जी, आपने बहुत Keep. या Yeah. Go. बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा. और आई आई कुड टेल कि आप अच्छे इंटेंशन से पूछ रहे थे, which was really heartwarming to hear, रिगार्डिंग लॉज के बारे में मुझे ज़्यादा इंफॉर्मेशन नहीं है, बट धीरे धीरे लॉज बेटर हो रहे हैं, क्योंकि आई थिंक कल ही न्यूज़ आई थी कि इंडियन सुप्रीम कोर्ट ने एक्सेप्ट किया कि ट्रांस वुमेन आर वुमेन करके, कि ट्रांस औरतें भी औरत ही हैं. क्योंकि देयर वाज अ केस दैट एक ट्रांस औरत जो थी बहू, उसको उसके घर वाले इन लॉज परेशान कर रहे थे, तो उसने अब्यूज का, वायलेंस का केस किया. बट कोर्ट कह रहा था कि नहीं, ये तो ट्रांस वुमेन है, ये रियल वुमेन नहीं है. तो ये चेंज अभी आया है, लिटरली दिस वीक, कि नहीं, ट्रांस वुमेन भी वुमेन ही है, उनको भी वैसे ही प्रोटेक्शन चाहिए, वैसे ही प्रोटेक्टिव एक्ट्स एंड पॉलिसीज उनके लिए भी होना चाहिए. ये सब धीरे धीरे आ रहा है. और टू बी स्पेसिफिक, अगर वायलेंस और अट्रॉसिटीज अगेंस्ट क्वेयर लोगों के साथ कुछ हो रहा होगा, अट्रॉसिटीज, उसका स्पेसिफिक लॉज मुझे पर्सनली नहीं मालूम, बट आई विल लुक इनटू इट. और मैं आपके, लाइक, मैं ट्राई करूंगी कि आपको रीच आउट करके बताना. जी राहुल जी, जितना मुझे पता है कि ट्रांसजेंडर लॉ में ये कवर होता है अगर कोई इंसान ट्रांसजेंडर है
और उनके अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है तो लीगली इसका प्रोटेक्शन है, जो ट्रांसजेंडर लॉ आया था उसमें। बस बाकी जो आप मतलब कोई भी एक होमोफोबिक कमेंट कर रहा है, एनीथिंग लाइक दैट, तो ये बेसिक ह्यूमन राइट्स में कवर हो जाता है। मतलब आपके अगेंस्ट, फॉर एग्जांपल मेरे अगेंस्ट के कोई कुछ कह रहा हो तो आई कैन ऑलवेज ट्राई टू प्रोटेक्ट माई राइट्स एंड असर्ट देम। सो बट आप जो कह रहे हैं वही गैप लीगैलिटी में है कि एक स्पेशल प्रोटेक्शन इज रिक्वायर्ड, बिकॉज सिर्फ क्रिमिनलाइज करने से तुमको सेफ्टी मिलता है, ये एक बहुत मतलब बिग अजम्पशन है। मतलब डिक्रिमिनलाइजेशन हो जाना ये सिर्फ जताता है कि आप वैलिड हो, आप जी सकते हो, आप अभी गुनहगार नहीं हो। पर उसके साथ साथ सोसाइटी का, जैसे आपने कहा कि एक बंदा रीच भी कर जाता है, अगर आप खुद जाते हैं तो आपके प्रोटेक्शन के बारे में भी आपको सोचना पड़ रहा है। तो वही एक कल्चर जब तक बनेगा नहीं, हर सोसाइटी में नहीं बनेगा, तब तक वो नहीं हो पाएगा। और उसके लिए लीगली पहली चीजें होना बहुत जरूरी है। मतलब आप एक सिग्नल की बात भी अगर ले लिए, ट्रैफिक सिग्नल्स बहुत लोग तोड़ते हैं, बट जब उसका एक लॉ बनता है कि आप तोड़ने के बाद उसको 10,000 फाइन लगेगा या आपका लाइसेंस रद्द हो जाएगा 1 महीने के लिए, तब जाके लोग फॉलो करना शुरू करते हैं। तो इसलिए लीगली चीजें होना बहुत जरूरी है, देन सोसाइटी चेंजेस फॉर इट। दैट्स थैंक यू आप दोनों को इस जवाब के लिए, क्योंकि एक्सपीरियंस रहा है मेरा कि मैंने कई बार ऐसा फील किया कि सोसाइटी में जो अ, लोग काफ़ी रिस्पेक्टेड हैं, लाइक डॉक्टर्स, पुलिसमैन, अदर लोग जो भी हैं, वो खास करके ऐसी चीज़ें कर रहे हैं, जो किसी को ऐसे शेमफुल वर्ड्स बोल रहे हैं पब्लिक प्लेस में ही, तो फिर उनके लिए वहाँ पे रिएक्ट करना काफ़ी टफ होता है। तो इसलिए क्वेश्चन मेरे मन में आया था, बट आंसर जो काफ़ी आप लोगों ने बताया और मुझे अच्छा लगा, पसंद आया। और हाँ, कीर्ति, थैंक यू फॉर दिस सेशन फ्रॉम द होल बिहार टीम। Thank you so much for being here. I'm very थैंक यू, grateful. Yeah. थैंक यू। There was one last question. Kashmira ji had a question. Hello, am I audible? Yes. Yes. Yeah, this question is kind of out of the box, but I just wanted to ask, like, how can you comfortably introduce these queer terms or these things to your parents? Like, if my friends or if my cousins are queer, so how can I actually, rather than saying it on them, how can I actually comfortably tell them about it? If there are these terms and about everything. That's a great question, और बहुत बार पेरेंट्स को बताना तो आपको वो वर्ड्स हिंदी या मराठी में ट्रांसलेट करना पड़ता है, विच इज डिफिकल्ट समटाइम्स। बट आप ऐसा कह सकते हो कि अगर कोई गे है, कि अगर आपके पेरेंट्स पूछे गे मतलब क्या, मतलब कि लड़का लड़के से प्यार करता है, लड़की लड़की से प्यार करते हैं। ज़्यादा डिटेल में भी जाने की कोई ज़रूरत नहीं, अनलेस दे आस्क। बट अ लॉट ऑफ टाइम्स दिस फ्रेमवर्क वर्क्स। बाइसेक्सुअल मतलब एक लड़का लड़के से प्यार कर सकता है, लड़की से प्यार कर सकता है, या फिर कोई दूसरा जेंडर हो तो उनसे भी प्यार कर सकता है, उनके साथ भी रिलेशनशिप हो सकती है। ट्रांसजेंडर माने कि बचपन में वो पैदा एक जेंडर में हुए थे, बाद में उन्होंने चेंज करके ट्रांजिशन किया। सो इट कुड बी, दैट्स व्हाट ट्रांसजेंडरिज्म इज। एंड समटाइम्स उनको ये भी बताना इम्पोर्टेंट रहता है कि जब सर्जरी किया, कि बॉटम सर्जरी, टॉप सर्जरी, जेंडर या फॉर्मेटिव केयर ये लिया तो ही रियल ट्रांस वुमेन है, ऐसा नहीं रहता। उनका 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 बॉडी ऑटोनॉमी का राइट्स उनके पास होता है। वो कह रहे हैं कि वो वुमेन है, तो वो रिस्पेक्ट करना हमारे साइड से, दैट्स व्हाट वी हैव टू डू। एंड देन व्हाट एल्स? Asexual people, they are not interested in any kind of sexual or romantic relationships. Intersex people, again, having like a complex mixed genitalia, or like having a different combination. What else is there? What else is there? Shubham, help me out here. Yeah.
मुझे जो लगता है कि आप मतलब ये रिसोर्सेस हिंदी में भी देख सकते हैं। मतलब आप बेसिकली कह रहे हैं कि एक जनरेशन जो है जो एक्सपोज नहीं था इस चीज़ों को, तो उनको अगर समझाना हो तो शायद हमें हर टर्मिनोलॉजी ना बताना पड़े। उनको सिर्फ एक क्वेयर कम्युनिटी होता क्या है, एलजीबीटी क्या है, मतलब क्या है। सो बेसिकली लेस्बियन, गे, ये सारा लाइक एबीसीडी बताने की शायद जरूरत ना पड़े। बस उनको हेटेरोनॉर्मेटिव से ये चीज़ कैसी अलग है, शायद उतना बताने से भी एक एजुकेशन मिल सकता है। और बहुत सारे हिंदी मूवीज अभी है, आप यूट्यूब पे भी अगर सर्च करें कि मिलते हैं। आई होप वी विल बी एबल टू पोस्ट अबाउट इट ऑन आर इंस्टाग्राम। मूवीज का तो हम करने ही वाले हैं जो हिंदी ऑडियंस के लिए है ज़्यादा, और बहुत सारे मूवीज है जो आप दिखा सकते हैं। बुक्स भी आते हैं जो हिंदी में है, वो दे सकते हैं। और बेसिक जैसे एनी जेंडर एंड सेक्सुअलिटी रिलेटेड, अभी मतलब ये बहुत लंबा डिस्कशन हो जाएगा अगर हमें बात करने लगे इसके बारे में। पर आई ऑल्सो फील दैट आइडेंटिटीज विल कीप चेंजिंग। जो प्लस साइन है, तो ऐसे बहुत सारे आइडेंटिटीज आते रहेंगे। बट हाउ डू यू मेक समबडी अंडरस्टैंड कि दिस इज नॉट एनीथिंग लाइक वे डिफरेंट देन व्हाट यू आर रियली, जस्ट वे ऑफ बीइंग अलग हो सकता है। और मैक्स टू मैक्स रिस्पेक्ट कैसे करना है, वो एक कल्चर हम ला सकते हैं। व्हाट आई थिंक। Thank you so much. Yeah. Katie, you were great today. Thank you. थैंक यू But सो I मच कीर्ति। यस। yeah, I just want to again highlight that वही इम्पोर्टेंट रहता है कि लोगों को बताना कि यही दो ऑप्शंस नहीं रहते कि खाली आदमी और औरत, और खाली स्ट्रेट लोग ही आदमी औरत से शादी करेगा। ये जो स्ट्रिक्ट रूल्स है, ये ऐसा नहीं रहता सोसाइटी में। इसके बाहर भी लोग रहते हैं, इससे अलग जिंदगी जीने वाले भी लोग रहते हैं, और वो भी वैलिड है। वो कोई कम नहीं ना ज्यादा है, जस्ट डिफरेंट है। ऐसे ऐसे वे में एक्सप्लेन करे तो आई थिंक दैट कुड आल्सो बी यूजफुल। Thank you everyone for joining. I am so grateful that everybody stayed for last minute and nobody's like really wanting to go. Sometimes it happens that people join in their time and then they go, or sometimes it gets difficult to actually stay on. But I am glad that people are so like interested in this topic itself, and मतलब एक curiosity है, learning का एक scope लेके चल रहे हैं सब। तो in spite of what I'm saying, रविंद्र, यस यस, इट्स मतलब क्या ही बोले। अभी बहुत सारे एनजीओज जो इंडिया में काम करते हैं क्वेयर कम्युनिटी के लिए, उनका सारा फंडिंग बंद हो गया है, बिकॉज ऑफ विच दे आर नॉट एबल टू डू देयर सर्विस एनी मोर। और उन्होंने रिसेंटली लास्ट वीक में यूएस में भी जो हेल्पलाइंस क्वेयर लोगों के लिए चलती थी, उसको भी एक महीने में अभी बैन होने वाला है। दे आर गिवन नोटिस टू स्टॉप द वर्किंग। सो इट्स रियली सैड टू सी दैट हैपनिंग। बट yeah, that's where That's where that's where we we need come support in. Yeah. from all the people in Yeah. the who are citizens of India. I mean, we are all from the same community, as Keitki said, humanity in itself. So yeah, great. Amazing. We look forward to everybody joining us next session, I hope. And please join in the WhatsApp community or wherever you can possibly follow us so that you keep getting updates. That's all. Because I'm seeing a lot of new people have joined in today. So yeah, I'm not able to copy paste again the links for it. Just give me a second and then And thank you so much for the participation here. I love when people chime in, share their views, share their questions, because this discussion is something that is much needed. एक ही आदमी बोल रहा है उससे ज़्यादा आप yeah. community में share करें, that is something very important. And I'm so grateful that all of you all joined and stayed and participated. So once again, thank you so much. Yes, we also do internship and volunteering opportunities. It's like active whole year, all the time. So we obviously can join us. Anyone who you know, any ideas you have for volunteership or collaboration, you can always reach out to us. If you are a mental health practitioner, you can
send your bio and everything. We can add you in the resources, because even though we run a helpline, sometimes in person भी therapy लोग prefer करते हैं, तो हम हमेशा एक referral database लेके चलते हैं. And definitely more the merrier, जितने भी लोग आ पाए हमारे लिए helpful है, सभी के लिए helpful है. Thank you so much everyone.